तो बोर्स मॉडल रे हमें three things are being integrated. One is Rutherford's model, the idea of a nucleus at the center of atom and that the electron is revolving around the nucleus. That idea is written in the Bohr's model. Plus ता सहित the newly proposed quantum theory which was given by Max Planck. That also is part of the Bohr's model. And ता सहित आउ गोटे जिनस थिला which was called wave particle duality. So these three concepts are being integrated into one model जोटा को बोर मॉडल कहूचे. तो क्वांटम थ्योरी टा हमें लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले. टिके खाली एसेंशियल पॉइंट्स आउथर रिकॉल करो. क्वांटम थ्योरी रे कोन होतला, इफ यू टेक अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन whose frequency is nu, then the minimum energy that the radiation can have is given as h nu, or we can say it is h c by lambda, where c is speed of light, lambda is the wavelength. This is also known as one photon or one quantum. And the total energy of such a radiation is n times h nu, where n is a natural number. So the total energy is a multiple of minimum energy. So we used to interpret this n as number of photons. तो एतिके essential idea थिला. And while using this theory to explain photoelectric effect, Einstein गोटे hypothesis बनैथिले that one electron gains one quantum at a time or one photon at a time. जदि गोटे इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी गेन करुची, इट विल गेन वन फोटोन एट अ टाइम. तो दीज आर द थ्री की फीचर्स जोटा हमको बोर मॉडल भी दरकार हबो. हला ए तीनटा फीचर वेरी इंपोर्टेंट. अच्छा, नाउ व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट वन, वेव पार्टिकल डुअलिटी, दिस वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली. तो गोटे डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन अछि व्हिच इज रिटन एज लैम्बडा इनटू पी equal to h. तो lambda होची wavelength, you know the meaning. h is Planck's constant. p is momentum of a body, momentum of an object, माने m into v. हैला, तो एठी कोन कहउचंती, product of lambda and momentum is h. h is a constant. तो एई प्रिंसिपल टार मीनिंग कोन देखो. if you say lambda into p is equal to h for any substance, for any object, ताहले तमे कहूच से ऑब्जेक्ट रो गोटे वेवलेंथ अछि. तो दिस लैम्बडा और द वेवलेंथ would show the object as a wave. तो we can say lambda is a wave characteristic. Momentum जोटा को p लिखिचे, that is supposed to be a particle characteristic. माने जोटा को तमे वेव कहूच तार मोमेंटम न थाए. मोमेंटम कार थिबो जार मास अछि. So having mass is a particle property. The momentum can only be associated with a particle. That's why momentum is a particle characteristic, lambda is a wave characteristic. So de Broglie says there is a correlation between these two, that their product is a constant, and it's a very small constant. h ର value ଟା 6.62 into 10 to the power minus 34, which is not very big. तो ता लगी कौन हुए, if lambda becomes high for some matter, then p becomes extremely low. So if momentum of a object is very low, एठी कोन हबो, you cannot observe the particle characteristics. You will realize this thing as a wave. So only wave nature is visible. Semti, if for an object p is high, so that you can easily realize that as a particle, तमे तार momentum टा को feel करि परछो, तो सही केस रे lambda would be very low and you cannot observe the wave nature. You will only be able to realize this as a particle. तो एठी मु कहबी only particle nature is evident. तो एठी कोन हला, जेहेतु h रो वैल्यू टा बहुत छोटो अछि, तो being equal to a very small constant, ए दीटा भितर जदि गोटे टिके भी हाई हे जाए, the other one becomes very low, extremely low. So although there are two characteristics associated with a substance, there is a wave nature, there is a particle nature, at a time you can realize any one of them.
आइदर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दीटा जाक नेचर एकाठी केबे भी तमे ऑब्जर्व करि परिबनी नॉट फॉर नॉर्मल पार्टिकल्स हैला। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी आइडिया रा सेंट्रल पॉइंट हैला देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ एवरी मैटर वेव कैरेक्टरिस्टिक अच्छी पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छी but at a time if you try to observe the nature then you will be able to observe either wave nature or particle nature गोटे नेचर ऑब्जर्वेबल जदि अच्छी आर नेचर टा ऑब्जर्वेबल हुएनी हैला। तो दैट इज बिकॉज h इज वेरी स्मॉल। तो व्हेन यू ट्राई टू ऑब्जर्व रो अर्थ कोन इफ यू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट लेट्स से यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट टू सी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट where you want to see the electron as a wave. So you can do that. You can observe the electron as a wave, but in the same experiment, you will not be able to realize the electron as a particle. Se kebala wave nature hi exhibit karibo. Similarly, you can design another experiment where the electron would behave as a particle. Seti particle nature ta ko observe kari paribo, ta related measurements kari paribo, but you will never be able to see the wave nature of the electron in the same experiment. तेनु एकाठी दीटा जाक ऑब्जर्व हबनी दीटा जाक कैरेक्टरिस्टिक अच्छी but only one of them is observable in one single experiment. So this is the essence of wave particle duality. Wave nature कौन particle nature कौन टिके तार गोटे बेसिक आइडिया दउची। सपोज करो एटा गोटे धरने एटा गोटे जगार पानी रखी है वाटर अच्छी if you create a disturbance somewhere एटी गोटे पत्थर पकेदेली तो you see the waves spreading out of that point and wave गुड़ाक कूल आड़ को जीव नहीं कि पोखरी भितर को गोटे पत्थर पकेदेल तो जो पॉइंट रे स्टोन टा हिट कला पानी को सेठू तमरा रिपल्स क्रिएट होची वेव क्रिएट होची एटी तमे डिस्टर्बेंस टा क्रिएट कर साला परे if you observe these waves तो can you pinpoint a particular location for the wave माने सपोज करो मु कहली एटा मोर x axis एटा y axis तो if I ask you to define the position of the wave in that medium can you define it तमरो एक्सपीरियंस रो तमे कहि परिबो जे वेव टार डेफिनाइट पोजीशन किछ नाही wave is spread throughout this medium. So this is the first basic difference between a wave and a particle. Wave ta पूरा region रे spread हेकी रहिची. You cannot pinpoint one particular point where the wave is present. किंतु मु जदि गोटे पार्टिकल नेबी सपोज करो मो पाखरे स्टोन टा थिला स्टोन इज we realize a stone as a particle. तो तुमको जदि पचारिबी स्टोन टा तमे कोठी पकेइलो को जगह रे स्टोन टा वाटर को हिट कला तो दिस पॉइंट कैन हैव अ डेफिनाइट कोऑर्डिनेट तार x कोऑर्डिनेट केते y कोऑर्डिनेट केते दैट कैन बी डिटरमिन्ड. तो particles can be pinpointed with a definite location whereas waves reside in a region of space. You cannot define any particular point as position of a wave. जेमति तमे तो एले बाहर दूर रे बसछ मु एले मो रूम रे बसी की कथा होची so I am creating a sound wave through the vibration of the vocal cord. तो when I am talking ए रूम भितरे से साउंड वेव टा को जगह रे अछि ताको कोन डिफाइन करि हबो इट इज थ्रू आउट द रूम. तो ए रूम भितरे जिए जोठी बसिबो ताको से साउंड टा सुना जिवो. तो दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. Particles can be associated with a definite position whereas waves don't have a definite position, but waves can be associated with a definite region of space. मु जो साउंड वेव टा क्रिएट करूची सेटा मेनली मु जो रूम भितरे बसची सेही रूम भितरे कन्फाइंड अछि. इट इज नॉट एबल टू गो आउटसाइड कि मु जो जगह रे अछि सेटु बहुत दूर को पळेलो एटु 4 किलोमीटर दूर को पळेलो ऑब्वियसली दैट साउंड वेव is almost non-existent at that point. तो गोटे स्पेस रो गोटे डेफिनेट रीजन रे तमे से वेव टा अछि बोली कहबो. सेम थिंग इज ट्रू फॉर एवरी अदर वेव. जेमति एठी वाटर वेव देखिलो कि लाइट तमे लाइट बल्ब टा ऑन कलो तो से बल्ब रो लाइट टा रूम को पूरा फिल कर दउची ना सो दैट लाइट वेव इज प्रेजेंट एवरीवेयर इनसाइड द रूम. किंतु
although waves cannot be associated with a definite position but rather with a definite region of space, still एई जो region रे तमरो wave टा रहिची, the presence of the wave can vary from point to point. जेमति यार गोटे भलो एग्जांपल कहूची रियलाइज करि परिबो. सपोज तमरो गोटे साउंड सोर्स मु कथा होची, तो मु कथा होची, तो इफ यू आर सिटिंग नियर मी, मो पाखरे बसछ, ताहले मो कथाटा लाउड हेकी सुभिबो तुमको. जेते दूर को पळेबो 50-100 मीटर दूर को पळेबो, ताहले कथाटा डिम हेई जिवो, सुभिबनी, वॉल्यूम टा कमी जिवो. तो तामाने कोन होची, जोटा तमरो वेव रो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जोठू डिस्टरबेंस टा को क्रिएट करा होची, ता पाख रीजन रे वेव रो एम्प्लीट्यूड टा हाई थाए. वेव रो गोटे एम्प्लीट्यूड थाए जानछ तो, जेम तमे वेव रो मनकर ग्राफ बनौछ, ए हाइट टा को एम्प्लीट्यूड बोली कहंती. तो से एम्प्लीट्यूड टा जेते हाई हबो, तमे कहि पारो वेव इज एसोसिएटेड विथ दैट मच मोर एनर्जी. मु जेतोले कथा कहूची, साउंड रो वॉल्यूम बढ़ाई देली, इफ आई एम टॉकिंग लाउडर, देन आई एम बेसिकली इंक्रीजिंग द एम्प्लीट्यूड ऑफ साउंड वेव. तो से एम्प्लीट्यूड टा जोठी हाई थिबो, सेठी से वेव टा को इजीली तमे ऑब्जर्व करि परिबो. मोर वॉल्यूम टा हाई थिले तमे मोर कथाटा इजीली सुनी परिबो. किंतु मु जदि वॉल्यूम टा कमे देबी, ताले कथाटा ठीक रे सुबिबनी. माने वॉल्यूम टा कमे देलो, एम्प्लीट्यूड कमी गला, सेठी वेव को फील करबाटा डिफिकल्ट हुए. एम्प्लीट्यूड टा जेते हाई रहिबो गोटे वेव रो, इट इज दैट मच इजियर टू ऑब्जर्व दैट वेव. तार गोटे कोरिलेशन तमे पानी रो वेव रे इजीली विजुअलाइज करि परिबो. मु पानी रे गोटे बड़ पत्थरटे पकेली, तो सेटू बड़ बड़ ढेउ क्रिएट हला, बिग वेव्स. तो सेटा जने दूर देखि परिबो, आखि को देखा जिवो बड़ बड़ वेव क्रिएट होउची. बट ता भितर गोटे छोटिया गोडीटे पकेली, वेरी स्मॉल टाइनी स्टोन, तो सेटू गोटे छोटिया रिपल मे भी क्रिएट हला. सेटा हुए आखि को देखा भी जीवनी. कि गोटे बाली रो दानाटे नै कि पकेबी पानी भितरे, तो सेटू जो वेव क्रिएट होउची, सेटा ऑफ कोर्स लेस ऑब्जर्वेबल, लेस विजिबल. तो से जो मोर विजिबल वेव और लेस विजिबल वेव, ता भितरे फरकटा रहउची एम्प्लीट्यूड रो. मोर विजिबल वेव हाई एम्प्लीट्यूड, लेस विजिबल वेव लो एम्प्लीट्यूड. पार्टिकल रे ए जिंस नाही, बिकॉज particles are not associated with properties like amplitude. पार्टिकल गोटे डेफिनाइट पोजिशन अच्छी, तो तामाने तमे कहबो पार्टिकल टा एठी अच्छी, एई जगह रे पार्टिकल टा अच्छी, एठी नाही. एमिति नुह जे हियर इट इज मोर ऑब्जर्वेबल, हियर इट इज लेस ऑब्जर्वेबल. इट इज नॉट लाइक दैट. द पार्टिकल इज सीन हियर, इट इज प्रेजेंट हियर, इट इज नॉट प्रेजेंट हियर. तो पार्टिकल पई सेटा बाइनरी मोड रे चलिबो, अच्छी कि नाही. वेव रे इट इज एवरीवेयर, but at some points it is more visible because it has a higher amplitude. At some other points it may be less visible because of a lower amplitude.